सर जी, मैं इतना बता सकता हूं, दिल में दुख मत लेना, जरा सा भी दुख मत लेना, क्योंकि आपकी एक आवाज पर ये सामने बैठे हैं आपके जो वॉलेंटियर है, ये लड़ने को तैयार है, मिटने को तैयार है। आप आवाज दो, दुख जरा भी नहीं करना। आप हमारी मोटिवेशन हो, आप हमारी प्रेरणा हो, तो प्लीज कृपा करके जरा सा भी दुख मत लेना, क्योंकि ये जो सब सोल्जर है पूरे देश के, ऐसे कितने बंदे आपकी एक आवाज पर मरने मिटने को तैयार है। एक बात मारे कहवी छे, एक बात आप मंच उपरथी જ્યારે મને મોકો મળ્યો છે ત્યારે હું જરૂર કહીશ કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ, એક સામાન્ય પરિવારનો વ્યક્તિ, જે આ કાકા બાપાના જે પોરિયા, આપણો અહીંયા શબ્દ છે કાકા બાપાની પોરિયા, સમજી ગયા તમે કે બંને પિતરાઈ ભાઈઓ ભાજપ કોંગ્રેસ કે જે માત્ર પરિવારવાદ અને ઉદ્યોગવાદમાંથી ક્યારે ઊંચા નથી આવતા, મારા જેવા સામાન્ય વ્યક્તિને આ પાર્ટી મંચ ઉપર લાવી દે છે। એટલી આ તાકાત છે, એટલી આ તાકાત છે કે સામાન્ય વ્યક્તિને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે એ આમ આદમી પાર્ટી છે। અત્રે મારે એક ખાસ કહેવું છે કે આ રાજ્યના પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી પોતાના પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે જ્યારે માનનીય આપણા શિક્ષણ મંત્રી શ્રી મનીષ સિસોદિયા ઇન્વિટેશન આપે છે કે વેલકમ ઇન દિલ્હી, અને જ્યારે મેડમ આતિશી ત્યાં આગળ એરપોર્ટ માટે એમને જો આગળ ફુલહાર માટે વેલકમ કરવા માટે જાય છે, તો ત્યાંથી આ લોકો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે કે સાહેબ આવો, અમે તમારું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છીએ। અમારી સ્કૂલો જુઓ, અમારી મોહલ્લા ક્લિનિક જુઓ, અમારી યોજનાઓ જુઓ, અમારું ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત શાસન જુઓ। તમને ખુલ્લી ચેલેન્જ છે, તમે જોઈને બતાવો, તમે એક સ્કૂલ એવી બતાવો કે જ્યાં મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક આવે, પણ હજી સુધી ત્યાં લોકો ત્યાં 2 દિવસ રિપોર્ટિંગ કર્યું, પત્રકારો શોધે છે, ગુજરાતમાં આવ્યા પછી પણ શોધે છે, રમણલાલ વરાજી ક્યાં ખોવાઈ ગયા છે એ કોઈને ખબર પડતી નથી। અત્રે મારે ખાસ આ વાત એટલા માટે કહેવી પડે છે કે આપણે બધા જાણીએ છીએ હવે પ્રજા જાગી ગઈ છે, હવે એમનો જે લોલીપોપ છે, એમનો જાદુ છે, હવે ચલાવવાના નથી। હવે આગળના અધ્યાય તરફ આપણે જઈએ। હવે પ્રશ્નકાલ છે। સરજી, અહીંયા જે માણસો આવ્યા છે, મારા વોલેન્ટિયર આવ્યા છે, જે દુર્ગા શક્તિ સ્વરૂપ મારી મહિલાઓ આવી છે, માતાઓ આવી છે, વડીલો આવ્યા છે, સજ્જનો આવ્યા છે, એમાંના કેટલાક સજ્જનશ્રીઓ, વડીલશ્રીઓ આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે। તો દરેક અહીંયા પ્રશ્નકાલ માટે ઉપસ્થિત હું માનનીય અહીંયા જે સ્વયંસેવકો લાગેલા છે એમને વિનંતી કરું કે જેને પણ ક્વેશ્ચન માર્ક અથવા પ્રશ્ન હોય તો પોતાનો હાથ ઊંચો કરજો। અહીંયાથી અમારા જે આયોજકો છે એ માનનીય કેજરીવાલસિંહને એક પ્રશ્ન સ્વરૂપ પોતાની વેદનાઓ મૂકશે। પ્રશ્નકાલની શરૂઆત। हेलो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मनोज सिसोदिया सर से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आज दिल्ली में और पंजाब में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे निवेशक आज जो पीएससीएल पल्स पीड़ित है, वैसे हमारे गुजरात में 30 लाख परिवार पीड़ित है। आज साबरकांठा में अरवली के 4 लाख पीएससीएल पीड़ित है सर, और उनका आज 500 करोड़ से ज्यादा पीएससीएल कंपनी में पैसा फंसा हुआ है। आज पंजाब में जो मुख्यमंत्री जो बने, उन्होंने एक गारंटी चुनाव के टाइम दिया था कि पीएससीएल का हर लोगों का पैसा दिलाएंगे, और वहां के जो लोगों ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया और वो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। वैसे ही गुजरात में सर 30 लाख जनता पीएससीएल से प्रभावित है। यदि आम आदमी पार्टी इन सभी निवेशकों का पैसा दिलाने की गारंटी देती है तो 30 लाख परिवार है सर, और एक परिवार का 5 वोट गिने तो आम आदमी की सरकार जरूर बनेगी गुजरात में सर। नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम हरपाल सिंह जाला है। सर, आप जब भी गुजरात आते हो तो किसी न किसी कर्मचारी मंडल में खुशी का माहौल छा जाता है। कल एक वीक पहले आप गुजरात पुलिस में फैमिली में खुशी का माहौल छा गया, आज अपने विद्यासागरों की फैमिली में खुशी का माहौल छा दिया। अब हमारे दोस्त और हमारे रिलेटिव टेक्निकल कर्मचारी है, 55,000 कर्मचारी है, जिनको और टाइम में तकलीफ पड़ती है, और जो उनका क्लास 3-4 में भर्ती होता है बराबर, और उनको आपके गुजारिश है कि उनकी जो मांगे कर्मचारी 55,000 कर्मचारी जो यूजीवीसीएल में और टेक्निकल स्टाफ है
उनकी हम डिमांड है कि उनका जो मुद्दा है वो आप हाईलाइट करें और उनकी डिमांड पूरी करें सर। नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट हेलो हेलो पाछળ શાંતિ રાખો પ્લીઝ પ્લીઝ શાંતિ શાંતિ। ભારત માતા की સાબરકાંઠા જિલ્લા ગામ રક્ષક દળ। हेलो સાહેબ શ્રી અમારો પ્રશ્ન છે જીઆરડી સભ્યોને પગાર વધારા અને કાયમી નોકરી બાબત સાહેબ અમને દૈનિક ભથ્થું 230 રૂપિયા મળે છે સાહેબ અને ઓછા પગાર મળે સાહેબ રોજના 230 લેખે પગાર મળે છે સાહેબ અમને પગાર વધારો મળે કાયમી નોકરી મળે સાહેબ એ બદલ ઓકે ઓકે નેક્સ્ટ સાંભળો બધા મિત્રો પ્લીઝ શાંતિ રાખજો પ્લીઝ પ્લીઝ। हेलो जी, माननीय अरविंद केजरीवाल सर जी, मनोज सिसोदिया सर जी, साबरकांठा धरती पर आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और मेरा क्वेश्चन है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और लास्ट ईयर होता है, उस वक्त चुनावी मतलब से भर्ती प्रक्रिया का आयोजन होता है। इसमें एक ही 3-4 डिपार्टमेंट की एक साथ भर्ती की जाती है और उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। उस वजह से कभी कभी पुलिस का मेरिट बाहर आने के बाद जो बच्चे पुलिस में रह जाते हैं वो कभी तलाटी में चले जाते हैं, तो पुलिस की वैकेंसी रह जाती है लास्ट में। तलाटी वाले लोग मेरिट बनने के बाद जब सचिवालय में जाते हैं तो तलाटी में लास्ट वैकेंसी रह जाती है। उस वजह से कभी बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद भर्ती आती है तो उसमें उसकी उम्र हो जाती है, तो वो काफी दिक्कत की बात है। यानी कि 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट होना ही चाहिए, हर भर्ती हो, तो इसके लिए बच्चों को फायदा हो सकता है। थैंक यू। નેક્સ્ટ આગળ બધા મિત્રો સહકાર આપો પ્લીઝ પ્લીઝ। હલો, મારું નામ ચાવડા નરેશ કુમાર છે। મારો એક જ મુદ્દો છે કે ગુજરાત સરકારને કે 10 દિવસથી મારા ગામમાં તલાટી સાહેબ આવતા નથી અને ગામના લોકો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે અને ગુજરાત સરકાર કોઈ એક્શન લેતા નથી। જય હિન્દ। ओके બધા મિત્રો પ્લીઝ શાંતિ રાખો સાંભળો। અરવિંદજી બેઠા છે સ્ટેજ ઉપર, સારું નહીં લાગે પ્લીઝ। અને બધા મિત્રોનો વારો આવવો એમાંય શક્ય નથી, આટલા બધા મિત્રો તો નહીં પૂછી શકે, એટલે આપણે સહકાર આપીએ પ્લીઝ। નેક્સ્ટ सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महसूल विभाग है जो छोटे से गांव से लेकर गांधीनगर गुजरात तक बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार इतना स्पाइनल कॉर्ड ही बिगड़ी हुई है इनकी, तो क्या आप उसको आम आदमी पार्टी सुधार सकेगी? तो हम इनके साथ हैं। નેક્સ્ટ माननीय चीफ मिनिस्टर जी, मेरा मुद्दा है कि आदिवासी विस्तार में 100 से ज्यादा एकलव्य स्कूल चल रही है, जिसमें जो शिक्षक है वो 10 साल से कामगिरी कर रहे हैं और वो सिर्फ महीने की 12,500 तनख्वाह मिल रही है उनको। और हम 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के क्लास लेते हैं और 10वीं और 12वीं में हमारा रिजल्ट 100% है। सरकार को बारंबार रजूआत करने से हमारी कोई सुनता नहीं है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि समान काम समान वेतन और कायमी भर्ती कीजिए, क्योंकि हम सब MA BEd है, मास्टर डिग्री से परिपूर्ण है, फिर भी सरकार हमारा नहीं सुन रही है। धन्यवाद। લાસ્ટ છેલ્લો ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ છેલ્લો ક્વેશ્ચન। હા બોલો माननीय केजरीवाल श्री, પ્લીઝ પ્લીઝ। હું અરવલ્લી જિલ્લા મોડાસાથી જીઆરડી સભ્ય છું। અમને સર રોજ નોકરી મળતી નથી। 15 દિવસ નોકરી મળે છે, 15 દિવસ ઘરે રહેવું પડે છે, તો 15 દિવસ અમારે શું કરવાનું? આ લોકો અમને કંઈ જ કરતા નથી। ઓકે થેન્ક યુ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। બાકીના જે કાંઈ મિત્રો છે એ પોતાનો પ્રશ્ન એક કાગળમાં લખી અને આપણી ટીમને સબમિટ કરાવી દેશે તો બધાનો પ્રશ્ન અરવિંદ કેજરીવાલજી સુધી પહોંચી જશે। નેક્સ્ટ थैंक यू सर। हेलो 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 अभी- हेलो। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, तो मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से
सरकारी स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। हाथ नीचे कर लें। प्राइवेट स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनमें से कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि पढ़ाई कैसी है सरकारी स्कूल में। अगर कुछ लोग बकवास, जीरो, बहुत खराब है। क्योंकि जब हम लोगों ने कहा कि गुजरात में सरकारी स्कूलों में शिक्षा खराब है, तो गुजरात के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां सबसे बेस्ट शिक्षा है सरकारी स्कूलों में। झूठ बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल में जिस जिसके बच्चे पढ़ते हैं, देश में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है। ऐसा यहां भी है क्या? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। कभी लाइब्रेरी चार्ज, पिकनिक चार्ज, डेवलपमेंट फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस। यहां भी ऐसे ही है। लेट फीस। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडा, और सरकार कुछ नहीं करती है। कई बार सरकार मिली हुई है। कई मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल चलते हैं और एक षड्यंत्र चल रहा है देश में कि सरकारी स्कूल धीरे 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 खराब करो ताकि लोग मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करें। है कि नहीं है? अच्छा, आप में से अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल में कौन कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। प्राइवेट अस्पताल में कौन कौन जाता है? तो सरकारी अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं होता। कोई दवाई नहीं मिलती वहां पे। तो अब मैं थोड़ा सा मैंने सारे आपके प्रश्न लिखे हैं, तो मैं भी आपसे थोड़ा 2 मिनट बात करूंगा। थैंक यू सर। જેમનો સ્વભાવ, જેમની લાઈફસ્ટાઈલ, એ આપણને એક મેસેજ આપે છે એવા દિલ્હીના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों और अभी कई हजार लोग इस हॉल के बाहर बैठे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। गजब की एनर्जी है यार आपकी, गजब का उत्साह है। और अभी हम अहमदाबाद से निकले यहां आने के लिए, सड़क के दोनों तरफ इतने लोग थे, ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात के अंदर क्रांति आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात अब बदलाव मांग रहा है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की रेड हो रही है कि नहीं है? जबरदस्त माहौल है गुजरात के अंदर। 27 साल के गंदे शासन के बाद अब गुजरात बदलाव मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था, अब एक अच्छा ईमानदार विकल्प मिला है और गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि जैसे दिल्ली और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, गुजरात में भी होना चाहिए। ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत की तरह है। जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी, जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे।
दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव के, अर्जुन उनके पांव के पास बैठ गए श्री कृष्ण जी के। उनकी जब आंखें खुली तो उनको पहले अर्जुन दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से पूछा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैंने इनको देखा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मेरे को तो सेना चाहिए थी। तो उसने कहा भगवान अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो आप इनके साथ चले जाइए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है, हमारे साथ भगवान है, और अंत में जीत सच्चाई की होगी, भगवान की होगी। और जनता के, भगवान जनता के दिल में बसते हैं, जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। आज जनता हमारे साथ है, ये जितना मर्जी हमें परेशान कर लें। आज दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में शानदार काम किया है। ऐसा काम किया है कि 75 साल, आजादी के 75 साल में इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ। जैसा भी मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा भाई सरकारी अस्पताल में कौन कौन लेके जाता है? कोई नहीं लेके जाता। दिल्ली में आजकल अमीर लोग भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ, दिल्ली के लोगों से फोन करके दिल्ली के लोगों से पूछ लो। अगर दिल्ली में फोन करके पूछना, अगर कोई आदमी अगर आपको यह कह दे कि केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे गुजरात में वोट मत देना। दिल्ली होके आओ, सरकारी अस्पतालों में घूम के आओ, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में घूम के आओ। दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश एक कॉलोनी है, सबसे अमीर लोग दिल्ली के वहां रहते हैं। वहां पे हम लोगों ने सरकारी डिस्पेंसरी बनाई है उन लोगों की मांग पे। वहां पे इतने अमीर अमीर लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने अमीर लोग। आज इतना शानदार स्वास्थ्य का सिस्टम कर दिया। अब दिल्ली में अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। जैसे मैं एक स्कूल में गया था अभी थोड़े दिन पहले, एक क्लास में गया, मैंने वहां बच्चों से पूछा सरकारी स्कूल में, मैंने कहा आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के कौन आए हैं, हाथ खड़े करो। तो कई बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से स्कूल से नाम कटवा के आए हो? बोला सेंट कोलंबस, दिल्ली का सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल में सेंट कोलंबस से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। गुजरात में भी ऐसे सरकारी अस्पताल और स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इन लोगों ने 2 महीने पहले झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया। 2 महीने से वो अंदर है, झूठा केस है बिल्कुल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती, अगर सतिंदर जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री जरा सा भी बेईमान होता, मैं उसको निकाल के बाहर कर देता। मैंने पहले एक मंत्री को किया था, मेरा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में अभी हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हमने खुद उसको निकाल के जेल भेज दिया, खुद हमने उसको, भगवंत मान ने उसको निकाल के जेल भेज दिया। हम जरा सा भी, इतना सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं देख रहे। उन्होंने 2 महीने पहले मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया और अब ये मनीष सिसोदिया को अगले 3-4 दिन में जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा काम चल रहा है वो बंद हो जाए। उनका ये मकसद है। ये तो गलत बात है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अगर हम सारे आपस में लड़ेंगे
तो देश कैसे तरक्की करेगा? हमें तो यह सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अच्छा काम हो गया तो केंद्र सरकार को हमें बुलाना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था सिखाओ, हम पूरे देश में करेंगे। ये अच्छी बात होती कि नहीं होती? कि केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए था मनीष सिसोदिया को कि मनीष जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप दूसरी पार्टी से हो सकते हो, लेकिन हमें बताओ, हम पूरे देश के स्कूल ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई भेज के अब इसको गिरफ्तार करेंगे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली का काम रुक जाए। दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। थोड़ी अड़चन आ सकती है, थोड़े दिन के लिए स्पीड कम हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे हम लोग। दिल्ली में हम लोगों ने पहले, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बहुत पावर कट लगते थे, कई बार बिजली जाया करती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। मैं देख रहा हूं महिलाओं के ज्यादा चेहरे खुश हैं, क्योंकि घर तो आप ही को चलाना होता है। आदमी तो महीने के अंत में आके पैसे रख देता है आपके हाथ में, फिर आप जानो आपका काम जाने, है ना? तो महिलाएं ज्यादा खुश हैं। तो बिजली के बिल 0 आएंगे, 0। कुछ नहीं होता उसमें, 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं आता, कुछ नहीं, 0 बिल आता है। तो सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। फिर दिल्ली में हमने आज पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या रोजगार की है कि नहीं है? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को। खाली बैठे हैं बच्चे घर में, पढ़ लिख के खाली बैठे हैं। कहां जाएं, किससे बात करें? कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास जाओ तो ये तो कहते हैं कि किसको, इनको तो अब चिंता भी नहीं है बीजेपी वालों को। गुजरात में इनसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं काम क्यों नहीं करते? कहते क्या जरूरत है, जनता किसके पास जाएगी? हमारे ही पास आएगी। 27 साल हो गए इनको। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया बीजेपी वालों को। दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर, 5 साल के अंदर, मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। 12 लाख बच्चों को। दिल्ली तो छोटा सा है, वहां 12 लाख बच्चों को दिलाया, तो यहां तो ज्यादा ही दिला देंगे। करना आता है हम लोगों को, रोजगार दिलाना आता है। हम ही को आता है, इनको नहीं आता, हम ही को आता है। तो गुजरात में हमने गारंटी दी है, गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार युवा को 3000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता। दस लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग की है हम लोगों ने। झूठ, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, इन्होंने प्लानिंग की। गुजरात में इतने स्कूल हैं, इतने नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसमें इतने टीचर लगेंगे। 1 लाख तो नए टीचर लगाने पड़ेंगे। जितना भी है उससे 1 लाख और नए टीचर लगाने पड़ेंगे। हम इतने नए अस्पताल खोलेंगे, इतने नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उतने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सफाई, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और ये जो पेपर फूटते हैं ना, इसका कानून लेके आएंगे, इसका कानून लेके आएंगे। पेपर फूटने वालों को जिंदगी भर जेल में रखेंगे। मैं देख रहा था गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार क्या चलाएंगे? उनके बस की बात नहीं है। जो सरकार, एक दिल्ली में अभी तक एक पेपर नहीं फूटा 7 साल में।
जो गुजरात में अगर सरकार एक पेपर नहीं कर सकती, वो क्या सरकार चलाएगी? उनको छोड़ देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। हम एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे, टाइम पे पेपर होंगे सारे के सारे, और इसके खिलाफ एक सख्त कानून लेके आएंगे। और एक बात, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बहुत सारी ऐसी गरीब बेटियों को जानता हूं जिनको एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, लेकिन पिताजी के पास पैसा नहीं है आने जाने का पैसा देने के लिए, कॉलेज की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अगर उनको 1000 रुपए उनके अकाउंट में जाएगा तो उस बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, एक औरत अपने बच्चों को पालती है, अगर 1000 रुपए उसके हाथ में जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स ला सकती है, दूध ला सकती है, कुछ उसको दे सकती है। एक बुजुर्ग महिला है, बेटी घर में आती है, उसका मन करता है थोड़े से पैसे बेटी के हाथ में रख दूं, फिर वो अपने पति से मांगती है, अपने बेटे से मांगती है। अब अगर 1000 रुपए उसको सरकार दे देगी तो उसे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपने 1000 रुपए निकाले। है कि नहीं है? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए महिलाओं को? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे उड़ा रहा है। मैं पैसे लूट नहीं रहा, मैं स्विस बैंक में नहीं ले जा रहा पैसे कमा के, मैं जनता को दे रहा हूं, जनता का पैसा जनता को दे रहा हूं। उनके स्कूल अच्छे कर देते हैं, महिलाओं को दे देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं, पानी मुफ्त कर देते हैं। इतनी महंगाई है, अगर हम जनता को थोड़ा सा राहत देते हैं तो क्या गलत करते हैं? अच्छी बात करते हैं। अभी मनीष जी ने बताया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इनको वोट दोगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब पिलाएंगे। आप तय कर लो। 27 साल हो गए, 27 सालों में तो इनसे स्कूल अस्पताल सुधरे नहीं, अब और तो सुधरने वाले हैं नहीं। आज मैं आपको स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने क्या किया, पहले सारे स्कूल ये अस्पताल वगैरह ठीक करके, दिल्ली में अब 2 करोड़ लोग हैं, हर आदमी का, हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आप अगर बुखार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, सारे टेस्ट फ्री हैं, कोई नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते बीपीएल कार्ड लेके आओ, कुछ नहीं, वो ये भी नहीं पूछते दिल्ली से आए हो कि कहीं से आए हो। आप चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, आप बोलो मैं बीमार हूं, डॉक्टर देखेगा आपको, टेस्ट लिखेगा, टेस्ट अगले दिन रिजल्ट ले जाओ, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में डॉक्टर देखता है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी नहीं मिलते, और सारी दवाइयां मुफ्त देते हैं। आपको बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कई लाख रुपए लगेंगे, आप दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में चले जाओ, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सब कुछ मुफ्त होता है वहां पे। चाहे 40 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा दिल्ली सरकार देती है। तो सबसे पहली गारंटी मेरी सेहत पे है कि सबको मुफ्त इलाज देंगे, अच्छा इलाज देंगे। गुजरात के हर नागरिक का पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरा, हर गांव में और शहर के हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में खोला है। चौथा, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, एयर कंडीशनड बनाएंगे, डॉक्टर को अच्छा करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, सब पूरा कायाकल्प करेंगे सरकारी अस्पतालों का, और कई नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे। और पांचवा, दिल्ली में हमने एक योजना की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई बाहर का हो,
मान लीजिए बॉम्बे से कोई गुजरात आया और उसका गुजरात में आके एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा इलाज चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, पूरा इलाज दिल्ली सरकार देती है। यही गुजरात में करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे प्राइवेट में आपका इलाज कराना पड़े, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। पिछले 3 साल में दिल्ली में हम 13,000 जिंदगी बचा चुके हैं, 13,000 लोगों को। तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। तुम मुझे वोट दो, महिलाओं के लिए हर महीने 1,000-1,000 रुपए दूंगा। और जितने पुलिस वाले हैं भाई बहन, उनको मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े दुखी थे, अब खुश हैं। वो ग्रेड पे मांग रहे थे। मैं एक बार ही आया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी इनकी डिमांड जायज है, इनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, सब लोगों ने मेरी तस्वीर और मेरा वीडियो अपनी डीपी में लगा लिया व्हाट्सएप पे। गुजरात सरकार घबरा गई बुरी तरह से। अगले दिन गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इनकी डिमांड हम मानेंगे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी, पूरी डिमांड नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, ग्रेड पे नहीं दिया, उनको केवल भत्ता बढ़ा दिया। तो मेरी अब उनको डिमांड है, मेरी अब उनको निवेदन है सारे पुलिस के भाइयों को कि इनसे भत्ता ले लो, भत्ता इनसे ले लो। अगले 3 महीने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो, जब हमारी सरकार बनेगी तो ग्रेड पे मेरे से ले लेना। सही है ना? अभी कल मेरे को पता चला इन्होंने 1 करोड़ रुपया, अभी थोड़े दिन पहले जब मैं आया मुझे पता चला कि यहां पे गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति फौज में अगर है और वो शहीद हो जाता है, तो गुजरात सरकार की योजना थी उसको 1 लाख रुपए देते हैं, और वो भी नहीं देते, उसके लिए भी दौड़ाते हैं उसको। ये तो हमारे सैनिकों के साथ अपमान है। जो देश के लिए शहीद होते हैं उनका तो सम्मान कर, उनके परिवार का मरने के बाद सम्मान करना चाहिए, देश को उसका ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली में हम लोगों ने उनके सम्मान में 1-1 करोड़ रुपए का हम उनको चेक, मैं खुद जाता हूं उनके घर। दिल्ली का रहने वाला कोई भी शहीद अगर होता है तो मैं खुद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके उसके घर जाता हूं, उसके परिवार को दे के आता हूं। तो जब मैं पिछली बार आया गुजरात, मैंने कहा कि गुजरात के पूर्व सैनिक भी यहां हड़ताल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा इनकी मांग जायज है, 1 करोड़ रुपया गुजरात के सैनिकों को भी मिलना चाहिए। तो गुजरात सरकार ने कल ऐलान तो किया, लेकिन लोग कह रहे हैं देंगे नहीं। चुनाव है इसलिए किया, क्योंकि अगर इनकी देने की नीयत होती तो बीजेपी पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब जगह करती, बाकी कहीं नहीं किया, गुजरात में किया। इसलिए मैं इनसे मांग करता हूं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो पिछले 5 साल में जितने शहीद हुए थे अगले 10 दिन में उनको दे दो, और अगर नहीं दोगे तो जनता सोचेगी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव के बाद पलट जाएंगे। और दूसरी बात, दिल्ली में हम केवल सैनिकों को नहीं देते, हम दिल्ली पुलिस वालों को भी देते हैं। पुलिस भी तो अपनी जान हथेली पे रख के, पुलिस वाले भी तो शहीद होते हैं, पुलिस वाले भी तो ड्यूटी में कितनी बार शहीद होते हैं। तो गुजरात पुलिस वालों को भी इस 1 करोड़ की योजना में शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात पुलिस से भी अगर कोई शहीद हो तो उसके परिवार को मरने के बाद, शहीद होने के बाद 1-1 करोड़ का उसको सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जितने हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं वो भी बहुत दुखी हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो मैं उनको भी ये आश्वासन देना चाहता हूं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए।
जितने ड्राइवर हैं, जितने कंडक्टर हैं, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। लेकिन उसके पहले आपको भी एक काम करना पड़ेगा। सभी ड्राइवर कंडक्टर आज से कमर कस लो। बस में जितनी सवारियां हैं सबको बोलो कि झाड़ू पे वोट डालना है। मंजूर है? सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर जितने हैं गुजरात के स्टेट ट्रांसपोर्ट में, सारे बोलो, एक एक हर बस में सामने खड़े होकर बोलो कि सारी सवारियां सुनो, जब टिकट देते टाइम उनको बोलो कि झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आप हमारी सरकार बनाओ, 1 महीने के अंदर मैं आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा। हैं जी, बैलेट्स एक काम करते हैं, कोई मुझे बता रहा था, मुझे पता नहीं है, कहते हैं वोटिंग मशीन में इतने परसेंट उतने परसेंट गड़बड़ होती है, लेकिन तुम इतने वोट देना उनकी वोटिंग मशीन भी, उनका फॉर्मूला खत्म हो जाए। जैसे दिल्ली और पंजाब वालों ने दिया, दिल्ली में 70 में से 67 सीट पिछली बार, इस बार 62 सीट। पंजाब में 117 में से 92 सीट। गुजरात में कितनी दोगे? होमगार्ड को क्या बोलते हैं? जीआरडी। होमगार्ड जितने हैं वो भी मेरे से मिलने आए थे, जीआरडी, और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली में भी थी। होमगार्ड वालों से तो मैं दिल्ली में, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, बनने के बाद भी बहुत मिलता था। वहां भी समस्याएं दूर की, आपकी भी सारी समस्याएं दूर करेंगे। आप भी अब प्रचार पे लग जाओ, 3 महीने खूब प्रचार करो मिलके। अब कुछ एक प्रश्न जो हुए थे, एक किसी भाई ने बताया कि 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो चिट फंड के शिकार हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते ही इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू की है। यहां भी करेंगे, आपका एक एक पैसा आपको वापस दिलाएंगे। वहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के किसी कर्मचारी ने, डिस्कॉम, उन्होंने कहा था उनके कई सारे मसले हैं। आप लोग भी बिजली वाले जितने घरों में जाते हो, प्रचार करो खूब। मीटर रीडर भी हैं, घर घर भी जाते हैं, प्रचार करो खूब, सरकार बनाओ, 1 महीने में आपके सारे मसले दूर करेंगे। जीआरडी, मैं सबसे मिलूंगा एक एक करके। अभी अगले 2 महीने में मैंने प्लान किया है। जैसे जीआरडी है, जीआरडी वालों से मैं सोच रहा हूं एक बड़ी मीटिंग रखूंगा। आप मेरे को बुलाओ, एक मीटिंग रखो अपनी, मैं आऊंगा आपकी मीटिंग में, आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो मीटिंग कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, सरकार उनको नौकरी से निकाल देगी, उनको मैं ऐसे ही बोलता हूं। लेकिन जो जो लोग मीटिंग कर सकते हैं, जो उनके साथ बैठ के बात करेंगे ना, ऐसे बात करने में ज्यादा मजा आता है। आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, 1 कप चाय आप पीना, 1 कप चाय मैं पीऊंगा। एक प्रश्न बड़ा जरूरी आया कि हर बार जब ये सरकार बनाते हैं, 4 साल कोई भर्ती नहीं करते, 5वें साल में भर्ती करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत खराब होती है। इन्होंने भर्ती नहीं करनी होती, चुनाव के पहले दिखाना होता है, दिखावा करना होता है। हमारी पंजाब में सरकार बनी है अभी, और पंजाब के अंदर अभी 6 महीने के अंदर भर्तियां शुरू हो गई है। सारी एक एक करके जितनी वैकेंट पोस्ट हैं सारी भर्ती कर रहे हैं। 26,000 वैकेंट पोस्ट हैं, उसकी वैकेंसी निकाल दी है, वो भर्ती हो रही है। 36,000 कर्मचारियों को पक्का करना है, उनको पक्का करने का, जितने कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम शुरू हो गया। तो सरकार बनने के तुरंत बाद एक एक जितनी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी हैं, सारी वैकेंसी भरने का काम शुरू करेंगे। 4 साल हम इंतजार नहीं करने वाले, आप भरोसा रखो। एक किसी ने कहा, एकलव्य टीचर्स वाला जो था, कि एकलव्य के लिए जो काम कर रहे हैं टीचर्स, वो टीचर्स, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी टीचर्स हैं सब टीचर्स को समान रूप से रखा जाएगा।
जो एक सरकारी टीचर को जो स्केल मिलना चाहिए सबको वो स्केल देंगे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल बनाएंगे, नए टीचर्स रखेंगे। जो पुराने टीचर्स हैं अलग अलग उनके जितने मसले हैं, जैसे इन्होंने बताया एकलव्य के जो टीचर्स हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, कम तनख्वाह मिलती है, आपको सरकारी स्केल दिलाएंगे। और यहां पे एक मैडम ने बोला कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हमने जो इतने सारे काम किए, लोग कहते हैं केजरीवाल जी पैसा कहां से आता है? आपने बिजली भी मुफ्त कर दी, आपने स्कूल भी बनवा दिए, स्कूलों में शिक्षा भी मुफ्त है, नए अस्पताल भी बना दिए, अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक कितने बना दिए, पानी मुफ्त कर दिया। हम दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराने ले जाते हैं मुफ्त में। अयोध्या जी ले जाते हैं, शिरडी बाबा ले जाते हैं, पुरी जी ले जाते हैं। पूरा आना जाना खाना पीना बुजुर्गों का सब मुफ्त होता है। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी वहां पे होटल में रुकवाते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, वो भी मुफ्त है। योगा कराते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पार्कों में योगा क्लासेस फ्री में होती हैं। लोग पूछते हैं मेरे से पैसा कहां से आता है? हमने सरकार में पहले जितना करप्शन होता था वो बंद कर दिया, खूब पैसा बचने लग गया, खूब पैसा बचने लग गया। गुजरात में भी पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे। और जो आम आदमी आप काम कराने जाते हो सरकारी दफ्तर में, आपसे पैसे मांगते हैं, चाहे ये काम करवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र, हैं जी 500 और भी कई चीजों के और भी ज्यादा होते हैं। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली में धीरे धीरे करके हम सारे सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया 1076 4 डिजिट नंबर है, दिल्ली से काम करता है। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो कि मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बोलो कि मेरे को बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, जो काम आपको कराना है आप बोलो उसको। वहां से आवाज आती है, वो कहते हैं कि हम आपका काम करने के लिए आपके घर कितने बजे आए? पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। फिर आप कहो, आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी से लेट आते हैं, आप बोलो जी मैं तो रात को 9 बजे आता हूं अपने घर, मेरे 9:30 बजे आ जाना। 9:30 बजे रात को दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। और वो आके आपको कहेगा ये पेपर चाहिए, आप उसको पेपर दीजिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, वो आपकी पूरी फोटोकॉपी कर लेगा, आपको एक रसीद दे के जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका कार्ड या जो भी काम है वो आपके घर आपके बाय पोस्ट आ जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी हो सकता है, एक ही शर्त है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा ईशुदान भाई ने कहा, गोपाल भाई ने कहा, सब लोगों ने कहा, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100 लोगों को वोट देने के लिए तैयार करने की। मंजूर हैं आप लोग? सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। इस चुनाव को हमें एक क्रांति के अंदर, एक आंदोलन के अंदर तब्दील करना है। गली के अंदर लोग निकल जाएं आम आदमी पार्टी के लिए। अगर सारे जनता तय कर लेगी तो ये जितनी मशीन खराब कर लें, फिर मशीन हमारी है, उसके बाद सारी वोट हमें पड़ेगी। भारत माता की ધન્યવાદ સાહેબ શ્રી। ટૂંક સમયની અંદર ગુજરાતના પ્રજાજનો માટે માનનીય, આપણા સન્માનનીય, આદરણીય એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી સાહેબ દ્વારા અત્યારે 6ઠી ગેરંટી લોન્ચિંગ થઈ રહ્યું છે, ગેરંટી કાર્ડ। તો જે મંચસ્થ મહેમાનો છે એ સર્વે પ્લે કાર્ડ લોન્ચ કરશે, ગેરંટી કાર્ડ, હેલ્થ ગેરંટી કાર્ડ। આપણે ટૂંક સમયની અંદર આ લોન્ચિંગ થયેલું છે ગેરંટી કાર્ડ। હવે
રાષ્ટ્રગાન થશે અને સન્માન સાથે આપણે બધા આપણી જગા ઉપર ઊભા થઈ જઈશું બિલકુલ શિસ્તબદ્ધ રીતે અને રાષ્ટ્રગાનને સન્માન સાથે આપણે સાંભળીશું અને ત્યાર પછી આપણે